السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ دس از فیڈرل انٹیریئر منسٹر پاکستان، جو کہ ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے، وزیر داخلہ پاکستان۔ بات یہ ہے جی کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی کھوتے سے بھی گر جائے تو کہتے ہیں جی کہ وزیر داخلہ بدلیں، اور وزیر داخلہ ہے کوئی پارٹی پرانی بنایا نہ بدل لیں۔ وزیر داخلہ ہے کوئی اس طرح دا بلیٹ نہیں جڑا ہر شیو بعد بدل لئیے۔ وزیر داخلہ ہے کوئی لنڈے دا کچھا نہیں جڑا دوسرے دن بدل لئیے۔ وزیر داخلہ ہے کوئی پاٹا جوگر نہیں جڑا بدل لئیے۔ وزیر داخلہ ہے کوئی پرانا موبائل نہیں جڑا ہفتے بعد بدل لئیے۔ وزیر داخلہ ہے حمام دا تولیہ نہیں جڑا بدل لئیے۔ یار ہو گیا، بس تشبیہ دینے کی کیا ضرورت؟ نہیں جی نہیں، تسی وزیر داخلہ ہوں کوئی کرپٹ چپراسی نہیں جڑا بدل لئیے۔ یار بس ہو گئی نا، بس بہت ہو گئی۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے بات کرنے دینا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اوہ ایمی بدل لئیے، کرپٹ منشی ہے جڑا بدل لئیے۔ اچھا بس ہو گئی نہیں سر کوئی گالے کر رہے، کوئی چور چپڑاسی ہے جڑا بدل لئیے۔ اور کیوں بدل لئیے؟ کوئی رکے کلا کو جڑا بدل لئیے۔ آپ کے جذبات عوام تک پہنچ گئے، مجھ تک پہنچ گئے، میں آپ کا مشکور ہوں، میری بات سنیں بس، ٹھیک ہے، ہو گئی نا بات کا۔ ایمی کئی جانتے نے بدل ہو۔ او وزیر داخلہ کو چکر والی شلوار نہیں جڑی بدل لئیے۔ اوے بندے بنو، بندے باندر نہ بنو۔ پتہ ہے نا تمہیں باندر نے اپنے مالک کے ناک کے اوپر سے مکھی اڑانے کے لیے اس کے منہ پہ چپیڑ مار دی تھی۔ ایویں بدل لئیے، جے بدل بھی لئیے تے اگلا آنے والا کیڑا سمانا تو آنا ہے؟ بھی ہو سکتا اگلا تھوڑے تو بھی گیا گزریا ہوگے۔ اب بکواس بند کرو اے ماسکو دے مراسیو، تم نواز شریف ہی کو ڈیزرو کرتے ہو۔ شکلیں دیکھو اپنی، جی میں چونے چ کھوتے ڈگے ہوندے نے۔ عمران کبھی کسی کو جھوٹی چائے نہیں پیش کرتا، مجھے بلا کر اس نے شاباش دی ہے ان کندھوں پر، ایسے داد دی ہے۔ ہاں جی کریڈٹ ہے، قربانی دی رات ہر بندہ لے لیتے ہاتھ پہ رنڈیا ہوں۔ اور اگر شیخ تمہارے ملک میں نہ ہوتا تو تم لوگوں کے ساتھ وہ ہونا تھا جو گلی منجی کے ساتھ بندھے ہوئے چور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ادوں پتہ لگنا جدوں تھانوں گلیاں منجیاں کسنیاں پیاں۔ گیلی منجی کس کے آیا ہوں تو یہی سمجھ لے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو بولے بادشاہ ہیں، دستخط کر بیٹھے تھے کہ بھارتی چینی وہاں سے آ جائے۔ یہ میں تھا جو سینہ تان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جی کہ میری لاش کے اوپر سے بھارتی ٹرک گزریں گے تب یہ چینی عوام تک پہنچے گی۔ ہم پھیکے مر جائیں گے لیکن ایک دانہ بھارتی چینی کا نہیں استعمال کریں گے، نہ ہم نہ ہماری کوئی کیڑی۔ ایدہ مطلب ہے کہ پھکیاں چاہواں سی تھوڑی وجہ کر کے پی رہے ہیں۔ او تے تم شوگر دے پھوڑے تو بچن واسطے پی رہے ہیں، کیڑا میری خاطر پی رہے ہیں؟ پھکے شربت پیتے جا رہے ہیں کی تھانوں دسیے؟ پھکے حلوے ونڈے جا رہے نے کی دسیے؟ زردے دا رنگ صرف پیلا مٹھاس ذرا نہیں۔ کامیڈیاں پھکیاں کری جا رہے ہو، او نہیں دس رہے ہو۔ اے چینی نہیں لبن دی تے کامیڈی کتھوں مٹھی کر لئی ہے جناب۔ یقین نہیں نہ آندا تا سوشل میڈیا ویکھو لوکی میماں بنا رہے ہیں تھوڑیاں۔ بہت چوڑا ہو گیا جی یہ سوشل میڈیا۔ جو ویلے گھر میں بیٹھ کے صرف ابے سے گالیاں سنتے تھے، آج وہ بھی سوشل میڈیا ڈائنوسور بنے ہوئے ہیں۔ ایسا قانون لے کر آؤں گا خدا کی قسم، آئی لو یو لکھتے ہوئے انگلیاں کانپیں گی۔ یہ قانون بہت پہلے لے آنا چاہیے تھا سی جدوں جاپانوں گڈیاں دے پیسے لوکی لین آندے سی۔ جو سوشل میڈیا تی وائرل ہوندی ہے نا یہ چیزیں۔ اچھا آپ مجھے یہ کریڈٹ تو کم سے کم دیں، حکومت میں رہتے ہوئے اگر کوئی مہنگائی کے خلاف بولا ہے تو وہ شیخ بولا ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا چند چڑھا دینے تھے اس اکانومسٹ نے۔ آؤ اکٹھے ہو جاؤ سبھی آ جاؤ، شاباش شاباش جلدی آؤ جلدی کیا وہ اکٹھے ہو جائیں؟ آؤ رل کے چند چڑھائیے، آؤ رل کے چند چڑھائیے، آؤ رل کے چند چڑھائیے، آؤ رل کے چند چڑھائیے۔ بل ودا کے قرض کھائیے، بل ودا کے قرض کھائیے، قرضیاں دیاں قسطاں کرائیے، قرضیاں دیاں قسطاں کرائیے، قسطاں لئی مہنگائی ودائیے، قسطاں لئی مہنگائی ودائیے، مہنگائی ودا کے رولا پائیے۔ پچھلے کھا گئے، اوئے پچھلے کھا گئے، وڈے کھا گئے، اوئے نکے کھا گئے، وڈے کھا گئے نکے کھا گئے، اگلیاں دے کولوں بچائیے، اگلیاں دے کولوں بچائیے، آؤ رل کے چن چڑھائیے۔ اور قرضے صرف ہم نے لیے، پچھلوں نے قرضے نہیں لیے۔ فضول باتیں کرتا ہے گینڈا کہیں کا۔ اور سب تو بہتا تو کھانا ہے اونٹھاں دیاں کچیاں سریاں کھان والے ہے۔ ہیلو مسٹر کھاڑی مالوی، ریپر نہیں، یہ کسی جن دا فلیپر ہے۔ شیخ صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ کیا صحیح کہہ رہا ہے؟
पहले हम कर्जे लेते हैं, हाँ। कर्जों को उतारने के लिए हम किस्तें करवाते हैं, फिर? और फिर किस्तों को उतारने के लिए फिर कर्जा ले लेते हैं। नहीं तो आप अपनी बालियां दे दें हुकूमत को, वो बेच के हम मुल्क का कर्जा उतार देते हैं। तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, साथ सोल्यूशन भी देना होता है। शेख साहब मेरी बालियां इतनी महंगी नहीं है। और मैं तंज कर रहा हूँ बालड़िए। 1700 रुपए ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇ ਖਾ ਗਏ ਜੀ। ना बगैर इजाजत के तेरे बावर्ची खाने में वड़ के खा गया हूँ मैं। ਸਾਡੇ ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਆਸੇ ਖਾਣ ਆਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। दोनों बहनें बराए मेहरबानी अपनी दानिशवरी अपने पास रखें जी। शेखो गरीब नु ला रहे हैं ते डर काके, गरीब नु ला रहे हैं ते डर काके, गरीब दे सिर विच खे पवा के, गरीब दे सिर विच खे पवा के, गरीबां नु सड़कां ते रुला के, गरीबां नु सड़कां ते रुला के, गरीब दे हक दा नारा ला के, आओ रल के चन्न चढ़ाइए, आओ रल के चन्न चढ़ाइए, आओ रल के चन्न चढ़ाइए, आओ रल के चन्न चढ़ाइए। तो हमने नारा लगाया गरीब को सड़कों पे लाने का। Of course. हम जिनको लाए थे वो सारी सारी रात नाचते थे। ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਢੋਲ ਹੀ ਐਸਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਿਜ ਦਾ, ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਿਜ ਦਾ, ਮੱਕੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਪ, ਵਿਖਾ ਕੇ 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। आई से shut up। तड़लम कर दे यार, मेरी बात टुंडा हो जाना है। अब कहा है तो अब क्या फायदा है बजाने का। मैं सीरियस बात कर रहा हूं। हेलो ओ मिस्टर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਟੁੱਕੋ ਦੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। अच्छा यही मैं देख रहा था कि अवाम के आगे हम बड़ा जब्त करते हैं। तुम और मिल तुम आप कुछ कह रहे। ਸ਼ੇਖੋ ਤਬਲੇ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾਈਏ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਚੰਨ ਚੜਾਈਏ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਚੰਨ ਚੜਾਈਏ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਚੰਨ ਚੜਾਈਏ, ਚੰਨ ਚੜਾਈਏ। एक मिनट, ये अगर आप तूने बेहूदी मेरे साथ ये पढ़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे साथ अस्तादी करने की कोशिश ना करना, मुझे सब पता है। जा क्या मतलब है, जहां तुम कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। अगर तबले पे उंगली आई मैं उंगली काट दूंगा, मैं पहले बता। ये तुम मेरे साथ अस्तादी कर रहे हो। जहां तुम रिदम से आउट होते हो, फिक्रा तुमसे बनता नहीं। अजीज मियां नु पा लेंदे हो, महंगाई का तुम्हें पता नहीं, बेरोजगारी का तुम्हें पता नहीं, सब्जी आटे दाल का भाव तुम्हें पता नहीं। आपके तो खैर से दोनों हाथ सिलाई मशीन में आ गए हैं ना। ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ, ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ। ਫਿਕਰ ਨਾਟ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਗੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਚਿੜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਨ, ਸ਼ੌਕਤ ਐਂਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ। ਆਓ ਰੱਦ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਈਏ, ਆਓ ਰੱਦ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਈਏ, ਛਾਈਏ ਤੇ ਖੱਪਾ ਪਾਈਏ, ਛਾਈਏ ਤੇ ਖੱਪਾ ਪਾਈਏ, ਛਾਈਏ ਤੇ ਖੱਪਾ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਰੱਦ ਕੇ आप इसको बिल्कुल समझें आप अपने ससुराल में आए हुए हैं। ये तबले वाला बाहर ना निकले जी, ये ना निकले बाहर। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं बाहर सिक्योरिटी गार्ड को। ये बिलियर्ड खेलने वाली छोटी जो मुंह से कुछ नहीं बोलती, फसाद की जड़ जो है, ऐडी ये गल नहीं करता जेड़ा तू चुकदा है। जब वो करता है अब अगर मेरा चेजा लिया ना तो मैं ढोलकी तेरी फाड़ देनी जे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। यार अब तबला ना बजाना। अच्छा शेख साहब, हुस्न परस्त तो बहुत है आप, कभी शायरी की तरफ रुझान हुआ आपका? और शायरों का क्या है, उल्लू देख के उनको पल्लू याद आ जाता है, परांदा देख के उनको नागन याद आ जाती है जिससे वो डसे गए थे, बादल देख के उनको बतख याद आ जाती है, नज़में लिख देते हैं द वाइल्ड डक। ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और बड़ी तेरी जबान चलती है कैंची की तरह, थोड़ा पढ़ लिख जाता ना तो आज कहीं पटवारी लगा होता, सारा गांव तेरे ऊपर नाज करता कि कितना सोहना नचता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। तुम क्यों हंस रही हो? ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਲਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇਲ ਨੇ। हंसोगी दायर है, हंसोगी। टू ऑफ कॉमेडी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। अच्छा, जिस तरह से आप खी किए जा रहे हैं, मुझे यकीन है आप मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। इट्स नॉट फनी, इट्स अ सीरियस थिंग, लाइक अ हार्ट अटैक। मुझे नहीं आता लड़ाई। और क्यों नवाबदीन, ये बीमार ऊंटनी लेके किधर जा रहे हो? ਇਹਦੇ ਊਂਠ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲਾਨ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? क्या हुआ है, खुल के बता। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੌਫ ਰਾਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। खौफ व हरास? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ। क्यों? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ अच्छा, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਏ, ਔਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। अब बकवास बंद कर। और ये उनका घर है, उनकी जिंदगी, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाय अल्लाह, वो तो मैं जाती हूँ छत पर पिया के इंतजार में शाम को मोमबत्ती लेकर, ताकि अपने दिल के राजा को रास्ता दिखा सकूं। मैं जाती हूँ छत पे। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨੱਚੇਗਾ, ਖੌਫੋ ਰਾਸਤੇ ਫੈਲਦਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਨੱਚ, 4 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। यार मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, वो अपने घर में नाच रहा है, भावे औरत बन के नाचे, मर्द बन के नाचे, जिन बन के नाचे, भूतना बन के नाचे, उसका घर, तुम्हें क्या तकलीफ? खौफ व हरास कैसे फैल रहा है? ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਏ ਖਾਲੀ ਬਿਆਬਾਨ ਏ, ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। हवेली किस रंग की है? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ हैं? ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। मैं ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਜਾ ਲੱਗੇਗਾ। अंकल प्लीज ऐसा तो ना करें ना, आपको मुझ पर तरस खाना चाहिए। हैं? ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰੀਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ये ਇਹੋ मुझे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਲੂੰਗੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਬੰਨੀ ਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਪਲ ਲਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। बेशर्म कर भुख तो मैं बेशर्म 2 बारी तो मेरे घर आया, तेन हथ ना पका के रोटी खवाई, वे चिट्टे खून वाले तो तेरी अखा बंद हो गई। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, नवाबदीन, ये तो मुझे कोई असेब ज़दा चीज़ लग रही है। ਤੇ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਰਾ ਸਿਗਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ 2 ਫੂਕਾ ਮਾਰੋ। अरे शेख साहब, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आज सेब नहीं है उस पे। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ। असेब कह रही है वो। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तुम्हारा क्या मतलब है? ये कोई मसला नहीं है। देखो ना कोई अच्छा सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला अपने लिए। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਈਦਿਆ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। और तूने ये जो पुठी सीधी हरकतें करनी होती हैं, अपने घर में क्यों नहीं कर लेता? हवेली में जाना जरूरी है। ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ। शर्म करें शेख साहब, आपको ये बातें जेब नहीं देती। क्या? और ओए, तुम इस- अपने अल्फाज वापस लो। आप शायद मुझे पहचानते नहीं शेख साहब, मैं हूं तफैल शरीफ, रिटायर्ड SSP। तफैल शरीफ? सर मेरी पेटी थोड़ी ਜਿਹੀ खिसक के थल्ले आ गई है, मैं जरा- एक मिनट, आर यू श्योर ये तफैल शरीफ है या बाबरा शरीफ है? भाई पाँव जरा ऐसा मारो, इस तरह तुमने जमीन हिलाई, मेरा दिल धक 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 कर रहा है। ਦੱਸੋ ਮੈਂ सलूट करा या बेला कराऊं? ओए लंगटिंग, फजूल खर्ची की हद तक तवील इंसान, ये तू किस किस्म के इंडिकेशन दे रहा है? रसीद तेन भी गल कर दी, तमीज कोई नहीं पुत्रा, तेरे दादियां बजावा वड्डियां दी कदर ना करिए ते कोई खैर नहीं पैंदी किसी पासों। माँ जी मुझे माफ कर दें, मुझे समझ में नहीं आई आप कौन है। उफ अल्लाह, शर्म करें शेख साहब, 18 साल की दुशीज़ा को माई कह रहे हैं आप। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, इतना तो मुझे PDM ने नहीं कंफ्यूज किया। देखें मोहतरमा, बात ये है। अंकल आप मुझे मोहतरमा क्यों कह रहे हैं? हेलो देखें शाह। बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। आप बच्चे बने? देखिए मेरा दिल चाहता है मैं आपके पास आ जाऊं। खबरदार अगर मेरे करीब आए, दूर रहो मुझसे। शेख साहब इतना कंफ्यूज ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਡਈ। ओ भरावा तेनू की दसां, मैं भी नहीं कंफ्यूज होया।
बस कर, किस बात पे कंफ्यूज है आप? ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ दे, सिर्फ इसके ठुमके बंद कर दे। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੋ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ अगर तुम बाज ना आए तो जा रखो, तुम्हारी पेटी नहीं उतर सकती। मार इसको। ਅੱਛਾ बहुत ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ये है आपके मुल्क के मसाइल का 1% भी नहीं है अभी। मैं आपको एक वजीर दाखिला अपना कैसे दर्द बताए, किन किन चीजों को हमने टैकल करना होता है। अच्छा एक मिनट जी, हमारे साथ ये आपको लग रहा होगा कोई प्याज का छिलका पड़ा हुआ है जो हंसे जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं हमारे मुल्क के। फराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उनके साथ इकरा बैठी हुई हैं। यार फराज इतने लंबे बाल थे, आपने उड़वा दिए। खैरियत, तबला खरीदने के पैसे नहीं रहे थे? बिल्कुल, आपको किसने बताया ये? अच्छा फराज, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया कि शादी के बाद खुद ही एहतियातन आपने टेंड करवा दिया। शेख साहब, जब लोग आपके बालों को हाथ डालना शुरू करेंगे ना, तब आपको इसकी इफादियत का पता लगेगा। और डालते रहे हाथ जी, 250 रुपए के। जनाब 250 की बात नहीं है, बाद में फिर आप बाइक पे पीछे बैठे होते हैं और ऊपर कैब रखी होती है आपने कि आपके बाल ना। अच्छा, बड़ी मेहरबानी यार। लोग आपको गिटारस समझ रहे हैं और आप चमोटा निकाल के मेरे दवाले में। बस इसे चमोटा ही समझे आप, जो मैंने पकड़ा होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। बस वे ढोला। इसके साथ ही एक छोटे सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वफाकी वजीर दाखिला के साथ रहने का शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया एक ऐसे मेहमान ने, मुझे नहीं समझ आता उनके बारे में मैं क्या कहूँ। 2 जुमले कहूँगा, आपको खुद समझ आ जाएगी मैं किस मेहरबान की बात कर रहा हूँ। होता है, सारी दुनिया में होता है। हिंदुस्तान को देखिए कितनी बड़ी जमहूरियत है, इंग्लिस्तान को देखिए कितनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए शायद मेरी दानिस्त में नाम नदर दन कमर मान कायरा जो होते हैं सारी दुनिया में होते हैं। लाला मूसा में भी होते हैं, कराची में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, PTM में भी होते हैं, शादेब के प्रोग्राम में भी होते हैं, और होता है, ये सारी दुनिया में होता है। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बड़ी मेहरबानी। कायरा साहब, ऐसा नास्ट्राडामस आपने जिंदगी में देखा जिसने किस वक्त कहा था ये PDM पे ना रहना, जाग दे रहना। शेख साहब, ये तो बात है ना, आप हैं बड़े दूर की कौड़ी लाने वाले, दूर तक खबरें रसाई रखने वाले, बल्कि जहाँ से खबरें चलती हैं वहाँ तक आपकी रसाई है। अच्छा कह रहे साहब, वैसे बात ये ठीक कर रहे हैं। 1 साल पहले से कह रहे थे पीपल्स पार्टी भाग जाएगी, इस्तीफे नहीं देगी। यार ये क्या गिदड़ सिंह है शेख साहब के पास के बातें ठीक करते हैं। शेख साहब, मौसमों के हालात तो जानते हैं जी बड़े। नहीं, आप हमें ये बताएं, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने PDM के साथ ठीक किया है? शेख साहब, गुजारिश ये है कि आपके जो दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना, ये बड़े उधारे से हैं, कुछ दिनों के ही हैं। ये आपका ख्याल है, ये आपकी एक प्रेडिक्शन इस हद तक तो दुरुस्त साबित हो गई कि हमारा आपस में इख्तलाफ हो गया, लेकिन इससे आगे भी तो दुनिया चलेगी ना, यहाँ रुक तो नहीं गए। अकेला शेख रशीद वजीर दाखिला था जी, पूरी PDM इकट्ठी थी, 11 जमातों का मुकाबला था शेख साहब से। बाकी नहीं, आपसे क्या मुकाबला था जी? वजीर दाखिला मैं था ना जी, चैलेंज मेरे लिए था। शेख साहब, आप तो कभी सिंध में जलसे शेख साहब, आप तो कल बने हैं जी। हम जनाब, मुझे बनाया क्यों गया था? नहीं, जस्ट टू कंट्रोल यू। अरे ये बात तो दुरुस्त है। और देख ले, एक पटाखा नहीं फटा, सारा कुछ हमने कंट्रोल कर दिया। पटाखा नहीं फटा, PDM पूरा। हाँ जी, ये तो मैंने भी बड़ा दुख है कारा साहब के कोई भी पटाखा नहीं चलिया, कोई शहनाइयाँ नहीं बची, कोई कोई किसी ने फुल नहीं सुटे, कोई घोड़ा नहीं निकले है, कोई बारात नहीं है। ये सारा कुछ ना होने के बावजूद शेख साहब आज भी बागो बाहर ने। किसी ने गाना नहीं बनया, किसी ने कोई छट्टा नहीं मारिया। जो कहते ने कोई ना घर जाड़े, ना सुख डिठे, ना कोई खट्टी खट्टी, ना किसी दा लेना कोई, ना छड़ चले तरट्टी। शेख साहब ने अपना कमाल कर। खैरा साहब, इस बुहरान च भी शेख साहब मर्दे हैरान बन के उभरे हैं। किसी की समझते हैं क्या कहा है? ए मर्दे हैरान, मर्दे बहरान, मर्दे हैरान। और जान दो शेख साहब, तुसी ते कदी तत्ती कुंडी नूं हथ नहीं लाया। मर्दे बहरान, मर्दे हैरान ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਵਾਚੀ ਗਾਂ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਫ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ गेंद ਨੂੰ ਵੀ बैक फुट ਤੇ जा के टिक। यार मर्दे बहरान होता है बहरान को हल करने वाला,
लेकिन कुछ मर्दे बहरान होते हैं, बहरान पैदा करने वाले, ये वो हैं। तो मैंने कब को कहाँ मैंने बहरान पैदा किया है जी? तो यार बहरान पैदा हो और बहरान हल करने वाला सर में उड़ा के बैठा रहे तो वो क्या होता है? और इज्जत के साथ बात करो, यू आर टॉकिंग टू वजीर दाखिला। तूने मुझे चिकन का कछुकुमा समझा हुआ है? शेख साहब ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ आता ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਗਵਾ ਜਾਣ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਘਸੋਰ ਮਾਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ। माइंड यू, ਅਗਲਾ ਪਲੇਅਰ ਨੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਭਾਰ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਬੁਹਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਖਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਹੈ। शेख साहब शतरंज वाले घोड़े ਨੂੰ पट्ठे खवा रहे सन, खा खा तेरे ते मेरी जंज जानी। इसीलिए शेख साहब अभी तक आपकी जंज नहीं गई कहीं पे। जंज नहीं गई है आपकी। बड़ा तुम जैसी लड़कियां भी जंजों पे दुल्हन देख के पागल हो जाती है। हाय हाय लगा मैं पड़ा सी, हाय हाय। या मेरा मुंह ना खलवाओ, देसी कुकड़ का पंजा तुमसे तगड़ा होता है। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं आप तो देसी कुकड़ खाते हैं। कह सकते हैं, देसी कुकड़ियां भी मैंने नहीं छोड़ी हूँ, बड़े शौक से खाता हूँ। देसी कुकड़ा ने पंजे खांदे साल आजकल वो भी नहीं खा रहे, कहते मेरे मेदे से जाके नौंदरा मार देने। अच्छा, अब गुज़श्ता बरसों में एक बड़ी कसाबाना सी पेशगोई किया करते थे कि ईद से पहले कुर्बानी, बाद में। अब कोई ऐसी बात नजर आती है आपको? और प्रोफेसर तेरी आंखों में मोतिया तो नहीं उतर आया? गंदे वाला बदबूदार मोतिया है। और अन्य तुझे ये नहीं पता ये पीडीएम की कुर्बानी हो तो गई है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆਈਏ। अच्छा, इसी को कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका पता है आपको? और होश के नाखन ले, खसियानी बिल्लियां लड़ रही हैं इस टाइम। ਆ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। दूध फटे मुंह। ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੇਗਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੈਂਟ ਲਵੋ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਗਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम कहरा साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। मैं जनाब दी खिदमत च हाजिर हो के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਾਦੀ ਜਨਾਬ, ਕਾਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨ ਸਾਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 85,000 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਟੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਜੁਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਓਏ 5-5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਅਰਤਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੰਗੋਲਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਐਵੇਂ ਭੋਰਾ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੋਰਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਇੰਜ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ। ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕੀਕਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਰ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇੰਜ ਚਾਚਾ ਭਸੂੜੀਏ ਸਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਵੇਲਾਂ 'ਚ ਲੁਟਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਡਾਤਾ ਹੀ। ਓਏ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਿਓ ਨੇ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, माफ करो। मैं तो कोई पैसा नहीं देता, जो देता तो माफ किया। भाई आप इस चीज को समझें, कायरा साहब की सिचुएशन को समझें। वो सियासतदान है जो सिर्फ एक मीटिंग अगर कराची अटेंड कर, उनकी तो सारी मीटिंगें कराची होती हैं, एक मीटिंग कम से कम लाख रुपए की उनको पड़ती है, ऊपर से वो तुम्हें भी दें पैसे, और वो क्या करें? क्यों जी कायरा शेख साहब बालियां सच्चियां नहीं करनी है,
मैं भी बनू भी कोई गल्लां दा पता है, फिर मैं भी कर दें। मैं तो आपके वैसे फेवर वैसे वैसे बात शेख साहब की अपनी जगह दुरुस्त है। शेख साहब हमारी अब आजकल तो कोरोना ने वो जूम मीटिंग्स भी हो जाती हैं, अब तो बगैर पैसे की मीटिंग हो जाती देखिए, मैंने तो तजर्बे पे एक बात कही है। मैंने जब भी मीटिंग का सुना है कि आप सुबह मीटिंग पे जा रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझा लो जी फिर पै गई जी लाख रुपया। ये पुरकशिश शख्सियत केड़ी है जी, शर्मिला फारूकी या परवशा खान? मुश्किल सवाल कर दिया है। तुसी मेरे तल्लक उन्होंने क्यों खराब कराना चाहते हो? कारा साहब, शायरी से बड़ा आपको शगफ है, अपनी पसंदीदा गजल तो सुनाए। फैज साहब के है पंजाबी का। आहा आहा, रब्बा सचिया तू ते आखिया सी जाओ बंदिया जग दा शाह है तू। वाह साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने साडा नायब ते आली जा है तू। वाह, ऐस लारे ते टोर कद पुछया ही कि ने ऐस नुमाने ते बीतियां ने, कदी सार भी लई ओ रब साइयां तेरे शाह नाल जग की कीतियां ने। वाह, किते तांदली माल पटवार दिए, किते तौंस पुलिस सरकार दिए, वाह ਐਵੇਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਕਲਪੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈ 'ਚ ਕੂੰਜ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਏ। वाह। ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਪੌਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। एक वक्त था लाला मूसा का एक नौजवान था जिसने ये लंबे लंबे बाल रखे होते थे, हैवी बाइकर्स की तरह, जिस तरह वो लड़के नहीं विलिया मार रहे होते हैं माल रोड के, वो ब्रुम ब्रुम पुलिस वालों ने जिनको पकड़ा होता है अक्सर। वो कौन था, जानते हैं आप उसको? मैं था जी, मेरे जैसे और बहुत सारे थे। शेख साहब आपके ज़माने में और तरह का माहौल होता था ना लोगों को इम्प्रेस करने का। अपनी जवानी में हर बंदा ही अपने कंधों के ऊपर से फूंके मार के चलता है और वो हीरो बनता है। हमारे दौर में ज़रा लंबे बालों वाले बड़े बड़े क्यों रखे थे आपने इतने लंबे बाल? लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लोगों में बड़ा कुछ है। वो जो आप कह रहे हैं वो भी है। शेख साहब फैज मैं कह रहा साहब, अब देखें आप आस्ता आस्ता जो है ना, छोड़े हम बात ही नहीं करते, फिलहाल लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। सफरनाक में अष्ट जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। अशक जहाजात देख लो, लगता है भुखा सुपरमैन होता। नाजरीन, आम तौर पर ठंडे इलाकों का ताल्लुक हम शुमाली इलाका जात से जोड़ते हैं और शादी होते साथ ही मरी दौड़ने की करते हैं। आपको ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि सिंध, जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सहरा का तसव्वुर आता है, वहाँ गोरख हिल्स भी है, जहाँ आम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। बाबा, सिंध के इलाके वाही पांदी में गोरख हिल्स हैं। साईं, वाई बांदी से 50 कोस आगे है ये। ਇਸੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਾੜ ਆ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा लगता है कि इसने सिंध के डढाड़ियों पहाड़ का नाम नहीं सुना। हाँ, भाई, डढाड़ियों पहाड़ को 2 अंग्रेज़ों ने, जिनका नाम मैकडोनल्ड और ललोर था, 1860 में गालवन जब उन्होंने एक लंबा अरसा यहाँ क्याम किया, तो उस वक्त उन्होंने गोरख हिल्स को दरियाफ्त किया। प्रोफेसर साहब, 1860 च तुसी ढडारी बांदर फड़न गए सो। अच्छा, तमीज का दामन हाथ से मत छोड़िए, बांदर फड़न नहीं, बांदर बड़न गए सन। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कीथर का पहाड़ी सिलसिला है जिसकी बुलंदी 5699 फीट है। ਇਹ 5699 ਫੀਟ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਸਿੰਧ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ये तो कुछ नहीं, वहाँ जो सबसे ऊंची पहाड़ी है शावन शाह, 7056 फीट। अच्छा अच्छा, वो जिथों ताड़ी महबूबा तानू धक्का देने लगी सी। ये भी आप बदतमीजी कर रहे हैं, महबूबा ने धक्का नहीं धोखा देता सी। अच्छा, आप गोरख हिल्स को बड़ा इजी ले रहे हैं। ये इतना अहम पहाड़ी सिलसिला है कि बड़े बड़े रिसर्चर्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च करके हैरत अंगेज बातें बताई हैं। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? भाई, गोरख हिल्स का गुरखों की फौज से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ਗੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। भाई, एक तसव्वुर तो यह है कि गोरख हिल्स का नाम गोरखंत जी के नाम पर है, जो यहाँ योग के लिए आए थे। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਰਖ ਦਵਾਈ ਹੋ? भाई, आप कभी उधर हमारे यहाँ दादू आए ना,
हम आपको मूली का हलवा खिलाएंगे। सही, आप तो बखूबी जानते हैं कि सिंधी जुबान में गोरख सर्द जगह को ठंडी जगह को कहते हैं। ये बहुत संजीदा बात है। सारी दुनिया से सयाह वहाँ पर गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए जाते हैं, सर्द सहरा को देखने के लिए जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। अशक साहब, असल बात यह है कि जितनी बातें इससे मंसूब हैं वो सारी इस पर पूरा उतरती हैं। हाँ, तो आप ये कल बताएंगे। भाई देखिए ना, संस्कृत में गोरख मवेशी को कहा जाता है। अब वहाँ पर मवेशी भी कसरत से लोग पालते हैं। बाबा कभी उधर आप दादू आओ ना, हम आपको बे खिलाएंगे। आप बेवक्त बोलना बंद कीजिए। ਇਹਨੂੰ ਬੇ ਨਾ ਖਿਲਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇ ਬੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। और तू भी आराम से बे। अच्छा, फारसी और बलोची जुबान में गुर्ग भेड़िए को कहा जाता है। हाँ, इसलिए महसूस होता है कि गोरख हिल्स का नाम इसी निस्बत से हो, क्योंकि वहाँ भेड़िए भी पाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ਸੁਣਿਆ ਚੰਦ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। अच्छा प्रोफेसर साहब, इतने ज्यादा नाम के मतलब इनमें से दुरुस्त कौन सा है? भाई तमाम नाम दुरुस्त हैं। देखिए, जिस निस्बत से कोई नाम मशहूर है वो खुसूसियत इस इलाके में पाई जाती है। और एक और बात आपको बता दूं जी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से इस इलाके को कोहे बेनज़ीर भी कहा जाता है। अरे वाह बाबा वाह, दिल खुश कर दिया। आप कभी दादू आओ, आपको डोडे का ही चार खिलाएंगे। वैसे ही घर में खराब पड़ा है, मैंने कहा चलो प्रोफेसर को खिलाएंगे। हौली तो बोल, खुंडियां कुहाड़ियां बेचने वाले। भैया आप गोरख हिल्स जरूर जाइए, वहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और एक गोरख होटल भी मौजूद है। ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਜੋ। कम से कम 8 से 900 लोगों को वहाँ पर एकामोडेट किया जा सकता है। ਓਏ ਹੋਏ ਪੀਡੀਐਮ ਤਾਂ ਜਲਸੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਉੱਥੇ। अच्छा साहब, 2008 में गोरख हिल्स में बर्फबारी हुई। हाँ, हाँ बिल्कुल, हुई हुई। अच्छा, तब जाकर ये इलाका तवज्जो का मरकज बना। अच्छा तो प्रोफेसर साहब 2008 से पहले वहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ी थी? भाई ये बर्फ 15 दिन प्रोफेसर साहब बर्फ के तोदे थले दबे रहे। बर्फ जरूर पड़ी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी को पता ही नहीं चला कि इस इलाके में इतना अहम इलाका है। सहरा में ठंड, कमाल बात। ਉਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋਈ। बाबा आप कभी दादू आओ, आपको शुतुरमुर्ग का अंडा खिलाएंगे, लेकिन उठा के तुमने खुद लाना है। ਜੇ ਬਚ देखिए। ਗਿਆ ਤੇ खा लें। देखिए, वहाँ जरूर जाएं। इसकी जो खूबसूरती है, मैं दावे से कहता हूँ आपको दुनिया में किसी जगह नहीं नजर आएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ बिजली का सारा निजाम सोलर पैनल्स पे है। अच्छा, मेरी नज़र में यहाँ का सबसे बड़ा मसला वहाँ तक पहुँचना है। 4 व्हीलर गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं। हाँ। और 6000-7000 से कम किराया नहीं लेती और 2.5 घंटे का सफर है। ये वो वाहिद सहरा है जहाँ पानी का कोई मसला नहीं। वहाँ टैंकर्स के जरिए भी पानी पहुँचाया जाता है और 3 पाइपलाइंस भी लगाई गई हैं जो नीचे चश्मे से ऊपर हिल तक पानी का मुनासिब बंदोबस्त करते हैं। हाँ जी, पुरानियां फिल्मां 'ਚ ना इंज दे बंदे खुले पहुंचे वाली पैंट पा के इंज करते। प्रोफेसर साहब नेपाल में भी तो गोरख हिल्स हैं। भाई वहाँ गोरखा हिल्स है ओह, और उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया है कि टेलीस्कोप नस्ब किए हैं ताकि लोगों की तरह अट्रैक्शन बढ़े और लोगों को मालूमात भी मिले। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। तो मारने दे जाती हैं, इसने कौन से कपड़े चेंज करने होते थे। यार तू बोल के डरा दे ना, लंगड़े कुकुड़ लड़ाने वाले। बाबा तुम कभी आओ दादू, मैं तुम्हें बिच्छू खिलाऊंगा, उससे तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी। वो ठीक बात है। देखिए, नेपाल ने इतना काम किया। मैं कहता हूँ हमारी हुकूमत अगर लोगों को सफरी सहूलतें दे और दरख्तों होटलों पर काम करे तो गोरख हिल्स एक बेहतरीन तफरीही मरकज बन सकता है। वो तो अपनी जगह है। ये बताइए, आपके दादा मरहूम गोरखों के हाथों मारे गए थे ना? अच्छा अश्क साहब वहाँ पे और भी लोग रहते हैं क्या? हाँ, लेकिन आप ये क्यों जानना चाहती हैं चेकोस्लोवाकिया की मलाइका अरोड़ा? चेकोस्लोवाकिया कोई मुल्क नहीं है। तो आप भी मलाइका अरोड़ा नहीं है। भाई करीबन 200 खानदान गोरख हिल्स में आबाद हैं जिनका जरिया माश मवेशी पालना है। अच्छा, गोरख हिल्स में लोगों का आना जाना कदीम ज़माने से था। यहाँ एक मकबरा मिलता है मस्मार शुदा मियाँ दाद फ़कीर का, और मैंने ये भी लिखा हुआ पढ़ा है कि यहाँ योगी भी आया करते थे योग के लिए, और यहाँ एक टेम्पल भी था, लेकिन अब उसके आसार वहाँ नहीं है। ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਮਸਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ,
قدیم آثار بھی مسمار ہو گئے. میرا خیال ہے یہ کلا منحوس ہی بچے. میرا دل چاہ رہا ہے آج کے شو کو ختم کیا جائے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.